What's up, guys? I hope you all are doing great. You should be, because I know that everyone is putting a lot of efforts to get better at their own life. So today we are going to talk about fat loss. As you already know, the title of the video, fat loss made simple, start from scratch. I'll break down each and every detail that you need to understand if you want to start your fat loss journey. If you don't have any idea about diet, about exercise or anything, this is the only video that you need to watch till the end. Listen to me again. If you are working on your fat loss journey, then only you need to watch. If not, definitely you can skip this video right away without wasting your time. So why I have decided to post on YouTube? Because I feel that Instagram is a more saturated platform, that people needs only short time content and that cringe content. I have decided to give the best quality information on YouTube. After this also, I'm going to post a lot of informative content. So this is the first video that I'm putting a lot of efforts. I have made a lot of points over here, and I'll be figuring out everything that I have applied on my client and given them a good results. So first of all, I have my laptop over here. I have noted down all the points because I don't want to overcomplicate everything. I'll explain each point step by step here. So I'll be sharing the points first. First one is about the common myths that people are following still. Second one is about the simple formula that you can apply on your fat loss journey right away and get better results. Third is the practical steps that you can apply. As I told you right away, you can apply these practical steps. Fourth is the mistakes that you need to avoid. Fifth is the mindset and consistency, because you know that this is the most important thing, because there's not any magic diet or exercise program. That's it. These are the important points if you want to start your fat loss journey. Nothing else. So if you are serious about your fat loss journey, you want to get better at your health and you want to ace in your own life too, because I feel that if you have that fit body, definitely you can ace in your personal life too, in your profession, in your business, everything. So without wasting time, let's just jump into our topic. आई नो दैट बहुत सारे लोगों ने पहले भी डाइटिंग ट्राई की है, कार्डियो किया है, एंड फिर भी वो वहीं पर स्टक है. आई हैव सीन द पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज फैट सिंस how much time. It's not just about I'm saying it for months, for a year, 2 years. I've seen that people 5 to 6 years they are training in a gym, still they look like they have that pregnant belly, right? So I'll tell you exactly how to drop this fat, how to cut down this fat without any magical formula, right? So I'll tell you exactly how I applied. This is my current client. I'm not going to show you the past clients, so you'll get confused about it. Oh, this is your client from 2021, and why you are showing this? Is there any upgraded data or that? So I know that science have progressed a lot, but still basics are the same, and same things I'm applying on clients. Yes, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, that we need to accept. जो मैं पहले करता था उसमें बहुत इम्प्रोवाइज्ड चीज़ें हैं, बट एग्जैक्टली क्या चीज़ें हमें करनी है, बेसिक्स क्या है, एंड आपको किन चीज़ों को मिस आउट नहीं करना है, एग्जैक्टली द सेम process I'm going to tell you. Firstly, look at this. One of my clients, you'll be getting image over here. This is the Rishikesh, who have lost around 10 kgs in just 8 weeks. एंड इस प्रोसेस में हमने जो भी एग्जैक्ट स्टेप्स को अप्लाई किया है, वो सारे स्टेप्स मैं आज ब्रेक डाउन यहाँ पर करूँगा. So you'll get a better idea about it, because I feel that instead of just sharing the information, I'll give the best example that already जो मैंने exactly किया है उससे आपको better way understanding होगी. So firstly, I'll tell you about the few common myths that people are still following. First is the skipping meals. A lot of people think that suppose मैं 3 meals खाता हूँ. First was the breakfast, second is the lunch and the dinner, right? Still people feels that it's not enough for your body. I'm not saying that you need to add fourth meal, but if you're not eating nutrient dense food, definitely it's not enough food for your body. Firstly, you need to understand food is not for entertainment, it's for fuel to your body. A lot of people are looking at food as an entertainment. ये बहुत ही टेस्टी होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए, देन ओनली विल ईट.
आई ऑर्डर इट फ्रॉम जोमेटो। घर का खाना बहुत ही ख़राब लगता है। नाउ नाउ डोंट टेक मी रॉन्ग दैट घर का खाना भी बहुत सारे लोगों का ख़राब ही होता है। अगर आप किसी को देखोगे, आई हैव सीन दिस मेंटालिटी दैट पीपल सेज दैट उनके घर के जेनेटिक्स ही वैसे है बिकॉज उनके सारे घर के लोग जो है वो हेवी वेटेड है, मीन्स मोटे हैं। आई से डायरेक्टली, सपोज कि किसी घर में आपको दिख रहा है कि घर में 2 से ज़्यादा लोग मोटे हैं तो उनका फूड कल्चर बहुत ही ख़राब है। एंड उनको ये रियलाइज़ भी नहीं होता है, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशंस दे आर फेसिंग, स्टिल उनको यही लगता है कि दिस इज़ जेनेटिकल डिसऑर्डर। अगर आपको कोई रेयर डिजीज़ नहीं है जिससे आपका वेट गेन हो रहा है, देन इट्स टोटली योर फॉल्ट। आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको चीज़ें पता नहीं है। So instead of wasting money on the medicines that I know that a lot of people are facing diabetes issues, hypothyroidism, PCOD, PCOS, this sort of a things. So आपको medication से ज़्यादा अपने nutrition and exercise पर focus करना बहुत ही important है। आपकी lifestyle fix करने पे focus करना बहुत ही important है। If you don't know anything about it, just get a good coach for that. That's it, simple. Get a nutritionist or exercise coach who is going to guide you throughout the time that how to execute all these things, right? So let's get back to the topic. I was talking about skipping meals won't help you to lose weight. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अभी डिनर स्टार्ट करूँगा, या फिर अभी ये नई चीज़ें ट्रेंड चल रही है कि इवनिंग के बाद डिनर नहीं करना है बिकॉज सार्केडियन रिदम ऑल्सो। लोगों को ये चीज़ें सुनने में कुछ तो नया वर्ड है सार्केडियन रिदम। जब आपका सन नीचे जा रहा होता है उस टाइम से आपको खाना नहीं है बिकॉज आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। सपोज इफ आई एम वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, व्हाट आई कैन डू, अभी की लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट। और अगर आप फूड कट डाउन करोगे डेफिनेटली आपका वेट कम होगा, बट ऑलरेडी आप बॉडी को न्यूट्रिशन कम दे रहे हो और फिर भी उसमें से भी आप कम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी सफ़र ही करेगी, आपकी बॉडी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी इन अ लॉन्ग टर्म। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको मील्स को स्किप नहीं करना है, आपको मील्स को फिक्स करना है विद द राइट न्यूट्रिशन। सेकेंडली, बहुत सारे लोग बस कार्डियो ही करते हैं। नो मैटर वॉट, आप 2 घंटे कार्डियो कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, या फिर सुबह शाम जिम में जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, इट्स नॉट गोना हेल्प यू टू लूज फैट। आई एम सेइंग इट ऑनेस्टली बिकॉज सी, अगर आप 1 घंटा बहुत इंटेंस एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू दैट अगर आप हेवी वेट हो तो आपको इंटेंस एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस ही करने हैं। वाई? बिकॉज उसमें इंजरीज होने के चांसेस बहुत होते हैं, आपकी मोबिलिटी कम होती है, आपकी बॉडी की स्पीड कम होती है, और इम्पैक्ट सस्टेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है अगर आपने वेट बहुत ज़्यादा गेन करा है तो। एंड अगर आप 1 घंटा, सपोज आपने एक्सरसाइज बहुत ही इंटेंसिवली कर भी ली, तो आप उसमें भी 150 to 200 कैलोरीज ही बर्न कर पाओगे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू योर 1 कॉफ़ी, या फिर आप जो चॉकलेट्स के बाइट्स लेते हो, या फिर आपकी 1 रोटी। सो अगर आप इन चीज़ों को खा रहे हो तो आपका जो भी 1 घंटे का वर्कआउट है इट्स जस्ट वैनिश्ड। सो कार्डियो करने से फैट लॉस नहीं होगा, आई एम सेइंग इट क्लियरली। थर्ड इज़ द सप्लीमेंट्स। लॉट ऑफ पीपल थिंक्स दैट कि कुछ मैजिक सप्लीमेंट्स होंगे, फैट बर्नर पिल्स, या फिर अभी बहुत सारे लोग शेक्स वगैरह चीज़ें प्रमोट करते हैं फॉर अ वेट लॉस। आई हैव सीन दैट लिटरली, आई विल टेल यू दैट कि यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो शेक्स वगैरह प्रमोट करते हैं। उन्होंने अपने वेलनेस सेंटर्स ओपन किए हैं, और वहाँ पर बिकॉज जिनको पता नहीं होता है कि इन्हीं चीज़ों के बारे में, उनको वो एक्सरसाइज करवाते हैं एंड आफ्टर एक्सरसाइज वो शेक्स देते हैं कि ये शेक्स ले लो, मील रिप्लेसमेंट शेक्स ले लो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8 to 10,000 और आपको ये एवरी मंथ लेना ही है, इससे आपका वेट कम होगा। डेफिनेटली आप अगर खाना ही छोड़ दोगे तो वो रिजल्ट जो है वो दिखेंगे, आपको वेट कम होता दिखेगा, साइकोलॉजी भी आपको अच्छा फील होगा। बट द थिंग इज, जब आप इनको बंद करोगे तो अगेन ये बाउंस बैक होगा और इससे बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स ही होंगे। लेट्स मेक इट क्लियर, बिकॉज आई हैव सीन दैट अभी भी लोग यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे बर्बल शेक्स लो और उससे वेट लॉस कम करो, या फिर आपको एड्स में दिखेगा, या फिर रोड्स पर भी उनके बैनर्स लगे होते हैं, वेट कम करो या फिर बढ़ाओ, कॉल ऑन दिस नंबर। सो द थिंग इज, दिस इज नॉट अ फिटनेस कम्युनिटी, दिस इज जस्ट मल्टी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज देयर बिजनेस, दैट्स इट। जिनको पता नहीं होता है उनके लिए ये चीज़ें बनती है, दैट्स इट। सो ये 3 चीज़ें नहीं करनी है।
फर्स्ट वन इज़ मील स्किप नहीं करना है, कोई भी मील को फिक्स करना है। सेकेंडली कार्डियो या फिर एक्सरसाइज करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा। कार्डियो और एक्सरसाइज आपकी हेल्थ बेटर करने के लिए कर सकते हो, बट नॉट फॉर अ फैट लॉस। आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना बढ़ाने के लिए कर सकते हो। थर्ड इज़ द सप्लीमेंट्स, आपको कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं फॉर फैट लॉस। दैट्स इट। नाउ द सेकेंड थिंग इज the simple formula. We are going to talk about calorie deficit. The basic thing is calorie deficit, आप सब लोगों ने सुना होगा. Now calorie means what? Calorie is the unit to measure your energy. जो भी आप फूड से एनर्जी लेते हो, सपोज कि आप अपनी बाइक में या फिर कार में पेट्रोल डलवा रहे हो, तो उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, राइट? सेम हम जो फूड ले रहे हैं उसकी कैलोरीज होती है, हर एक फूड की कैलोरीज होती है। अगर आप गूगल भी कर लोगे, रोटी वहाँ पर इनपुट कर रहे हो या फिर ब्रेड कर रहे हो, एग्स कर रहे हो, तो उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज दिखेगी। तो वो कैलोरीज क्या है? वो जितनी एनर्जी आपके बॉडी को देता है उतनी कैलोरीज है, राइट? सो द थिंग इज कैलोरीज, यू नो दैट कि अभी ये एनर्जी को काउंट करने का या फिर एनर्जी का यूनिट है, राइट? So I'll tell you basically what happens that suppose now I'll take my own example, या फिर मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था मेरे क्लाइंट का, सपोज ही हैव मेंटेनेंस कैलोरीज अराउंड 2000। इसका भी कैलकुलेटिव फॉर्मूला होता है। इफ़ यू नीड इट आई शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट आप कमेंट कर देना कि आपको इसके बारे में, कैलोरीज के बारे में डिटेल में समझना है। सो आई मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट। So I have different points to discuss over here. So I'll just give you the brief on it. So calories, suppose कि maintenance calories as in what? Now the person is, suppose मुझे अभी मेरी जो maintenance calories है which is the 2000 calories. Now maintenance means what? मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इससे कम नहीं चाहिए। Exact calories अगर मैं खाऊंगा तो ना ही मेरा वेट कम होगा, ना ही मेरा वेट बढ़ेगा। मेरी बॉडी की जितनी एनर्जी लग रही है उतना ही मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, एंड ऑन दैट बेसिस मेरा वेट सिमिलर है, राइट? सो नाउ द थिंग इज मेरी बॉडी को 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, राइट? बट आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड अ लॉट ऑफ फैट ऑन माई बॉडी, और मुझे उस फैट को एज ए एनर्जी यूज करना है और मुझे वेट कम करना है। दैट्स इट, सिंपल, राइट? तो मुझे अभी यूज करना है एज इन व्हाट आई डू इज, मैं जो भी अभी एग्जिस्टिंग कैलोरीज है 2000 कैलोरीज है, मैं उसमें से थोड़ी कैलोरीज कट डाउन करूंगा। सपोज मैंने 300 कैलोरीज कट डाउन की है, नाउ आई एम ईटिंग 1700 कैलोरीज, राइट? अभी जो 300 एक्सेसिव कैलोरीज है मेरी बॉडी को तो 2000 कैलोरीज ही लगेगी। बॉडी को ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि इसने खाना कम किया है तो मुझे अभी वहीं पर स्टक रहना है। बॉडी को तो 2000 कैलोरीज ही लगेगी, तो ऊपर की 300 कैलोरीज जो है वो आपके स्टोर्ड फैट से ही यूज़ करेगा। सो आप इसको कंसिस्टेंटली करोगे तब धीरे 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 करके आपके स्टोर्ड फैट से एनर्जी यूज़ होगी और आपको वेट नंबर में डिफरेंस दिखेगा। नाउ द थिंग इज आपने कैलोरीज कट डाउन करी है, बट मेनली यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके फूड में न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो न्यूट्रिशन एज इन वॉट, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि आपको सारी चीज़ों पर फोकस करना है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। लाइक देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। इन सारी चीज़ों पर आपको एज ऑफ नाउ फोकस नहीं करना है। मेनली आपको फोकस करना है ओनली ऑन वन थिंग विच इज़ द प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन योर फैट लॉस जर्नी। वाई? बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म फैट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल करना है या फिर आपको फिट रहना है लॉन्ग टर्म, तो आपको आपके बॉडी पर मसल्स चाहिए। आपको अगर लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना है तो अंडरस्टैंड वन थिंग, मसल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर आपके बॉडी पर मसल्स नहीं है तब आपको बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म ख़राब होगा, आपका इम्यून सिस्टम ख़राब होगी, बॉडी में पेन्स होना स्टार्ट होंगे। बहुत सारे लोगों को अभी भी है इन देयर यंग एज ऑल्सो, मेटाबॉलिक एज भी उनकी बहुत ज़्यादा दिखाती है बिकॉज ऑफ दैट ओनली। आपको बैक पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें होती है। आई नो दैट बहुत सारे लोग जो उनके 20s में भी है, यंगस्टर्स, उनको भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है बिकॉज दे डोंट हैव इनफ अमाउंट ऑफ मसल्स ऑन देयर बॉडी, राइट? सो द थिंग इज, अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, प्रिजर्व करने हैं, जितने ऑलरेडी मसल्स हैं उनको बचा के रखना है, तो आपको इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके मील्स में इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सपोज आप 3 मील्स ले रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन ईच मील आपको प्रोटीन को इंक्लूड करना ही है। दैट्स इट, सिंपल, राइट?
सो कितना इंक्लूड करना है, इट्स टोटली डिफर। सो मैं एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बताऊँगा। सो मेक श्योर, बहुत सारे लोग बहुत ही प्रोटीन डिफिशेंट होता है अराउंड, आई फील दैट डिफ़िकल्ट एज इन वो डेली का 5 से 10 ग्राम प्रोटीन ही ले रहा होता है। सो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ। एट द स्टार्ट आप होल डे में भी 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी ले रहे हो, उसको डिवाइड करके इन 3 मील्स, डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। फिर उसको धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो, बिकॉज डोंट मेक इट लाइक कि मैं एक ही झटके में 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर लूँगा। इट्स नॉट गोना हैपन एंड इट्स गोना बी सो हार्ड टू डाइजेस्ट। सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, जितना भी आप प्रोटीन ले रहे हो उसको डिवाइड करो इन ईच मील एंड फिर उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। नाउ द थिंग इज, एज आई टोल्ड यू, जब आप कैलोरीज कम करोगे तब धीरे धीरे करके आपकी बॉडी एज ए एनर्जी फैट को यूज़ करेगी, राइट। एंड जब फैट को यूज़ करेगी तो आपका फैट लॉस होना स्टार्ट होगा। एंड अगर आप उसमें प्रोटीन ऐड कर रहे हो तो आपके मसल्स जितने भी बचे हैं वो प्रिजर्व रहेंगे, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी मसल ग्रोथ भी वहाँ पर आपको दिखेगी। एंड जितना आप मसल ग्रो करोगे उतना आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा और आपकी फैट लॉस जर्नी और ज़्यादा फास्ट होगी। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट कि आपको सारी चीज़ें वेट करके खाना है। येस, आई डू दैट। क्लाइंट्स के लिए मैं एग्जैक्ट सेम स्टेप्स करता हूँ, बिकॉज वहाँ पर मैं खुद गाइड करने के लिए होता हूँ कि आपको कौन सी क्वांटिटी कितनी लेनी है। बट नाउ आपको बस बेसिक्स क्लियर करना है। सो फॉर दैट ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग्स। फर्स्ट थिंग, जो भी फूड आप खा रहे हो उसका पोर्शन ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसमें कितनी कैलोरीज है, किस में कितनी कैलोरीज है, ये पता नहीं होता है। अगर आप गूगल कर रहे हो, उसको नोट डाउन करके ले रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग, वो कर सकते हो आप। बट द थिंग इज, सपोज कि आप डेली का जो फूड खा रहे हो वही रख रहे हो, तो उसमें से बस थोड़ी सी क्वांटिटी कम करना, और जितना भी आप पोर्शन ले रहे हो उसको ट्रैक करो कि आज मैंने कितने रोटी ली थी, कितना राइस लिया था, सब्जी कितनी थी, और उसमें और क्या क्या मैंने ऐड किया था। दैट्स इट, सिंपल। उसको ट्रैक रखो फॉर अ वीक। आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में क्या क्या खा रहे हो, और आफ्टर अ वीक आपके वेट में कितना डिफरेंस आ रहा है। इफ़ नॉट, आपको पोर्शन और थोड़ा सा कम करना है। सेकेंड स्टेप इज फोकस ऑन हाई प्रोटीन मील्स। हाई प्रोटीन मील्स एज इन वॉट, एज आई टोल्ड यू, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में आपको प्रोटीन रिच फूड सोर्स डालना ही है। सो इफ इट्स अबाउट योर एग्स, चिकन, मटन, फिश, और पनीर, सोय, और एनी सॉर्ट ऑफ लेंटिल्स, इसमें से कोई भी सोर्स आप अपने ऑप्शंस में ऐड कर सकते हो, बट आपको ये ऐड करना ही है नो मैटर व्हाट। स्टेप 3, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करनी है। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको फैट लॉस जर्नी फास्ट करनी है, स्पीड अप करनी है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी है। मेक श्योर कि आप एक अच्छा फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट जो है, मीन्स फुल बॉडी एज इन एवरीडे फुल बॉडी नहीं करना है आपको। ओवरऑल वीक में आपके बॉडी के सारे मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, ऐसा वर्कआउट स्प्लिट आप अगर अप्लाई कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी टू गोइंग टू द जिम टू लूज वेट और बिल्ड मसल्स। आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारे मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, बिकॉज बॉडी में मसल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। सो एड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मेक श्योर कि आप सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर रहे हो इक्वली, नॉट जस्ट वो स्टिक लेके वर्कआउट कर रहा है, आप इधर उधर घूम रहा है, स्टेपर्स पर वर्कआउट कर रहा है। I feel that this is kind of a circus training. I know that a lot of coaches in the gyms also they are doing the same thing. कोई डांस करवा रहा है, कोई वो स्टिक लेके ऐसे ऐसे करवा रहा है, कोई वो स्टेपर पर डांस करवा रहा है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, या फिर बहुत बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें होती है। सो यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको एक सिंपल बेसिक वर्कआउट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दैट्स इट, जिसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स ट्रेन हो। इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट दैट, कमेंट डाउन। सो मैं वाई स्पेसिफिकली सेइंग दिस, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता होती है। इफ़ नॉट, then definitely I'll make video on this. And daily walk करो। अगर आपका वेट ज़्यादा है, instead of focusing on a workout only, आप walk करो, because walk आपसे एफर्टलेसली होगा, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने की ज़रूरत है, और वॉक में आपकी इनफ कैलोरीज बर्न होगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, मूवमेंट में रहेगी, एंड विद द टाइम आप इसको स्पीड अप भी कर सकते हो, वॉक को स्लो जॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपकी बॉडी का स्टैमिना भी इंक्रीज होता जाएगा, आपकी हार्ट हेल्थ, कार्डियो हेल्थ भी इंप्रूव होगी। नाउ द फोर्थ थिंग इज टू मिस्टेक्स टू अवॉइड। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। सपोज आप कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट फॉलो कर रहे हो। आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज डूइंग दिस चैट जीपीटी थिंग ऑल्सो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि चैट जीपीटी को पता नहीं होता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। सो इट्स नॉट एन इशू इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस, बट मेक श्योर जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो उसको एवरी वीक स्विच नहीं करना है। जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको लॉन्ग टर्म
फॉलो करो, डेफिनेटली उसी से रिजल्ट्स आएंगे। अगर वो आपको अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है तो आपको उसको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज द डूइंग ओनली कार्डियो नॉट अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आई हैव हर्ड दैट फीमेल्स मोस्टली कि वो बस कार्डियो करती है, उनको लगता है कि वेट ट्रेनिंग से या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से मेरी बॉडी बल्कि हो जाएगी। इट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी इज टोटली डिफरेंट। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, लिफ्टिंग करोगे, तो आपकी बॉडी और टोन्ड और बेटर शेप में आएगी। सो मेक श्योर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा करो। मैं जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं सबको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए प्रेफर करता हूँ। अगर वो कार्डियो भी नहीं कर रहे हो, नॉट एन इशू विद दैट, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओनली करके आपकी बॉडी का फैट कम कर सकते हो। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। अगर आप वीकली हाफ के जी भी लूज़ कर रहे हो, इट्स अ ग्रेट प्रोग्रेस। कभी नहीं भी हो रहा है, नॉट एन इशू विद दैट, एटलीस्ट यू आर बीइंग कंसिस्टेंट विद इट। नेक्स्ट वीक से फिर से आपकी बॉडी रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करेगी। सो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बीच में नहीं छोड़नी है, बिकॉज दिस इज़ द लॉन्ग रन गेम एंड इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है और वह नहीं हो पा रहा है, तो इससे आप कभी भी ऐसे फैट लॉस नहीं कर पाओगे या फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप जितना लॉन्ग टर्म करोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड। डाइट स्विच नहीं करना है कंटिन्यूसली, बिकॉज अगर आपको जितना अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उस डाइट से, उस पर स्टिक रहो। डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। बस कार्डियो करने से फैट लॉस नहीं होगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर, आई नो दैट दिस वीडियो हैज़ बिकम वेरी लॉन्ग, बट ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ें आप अप्लाई करते हो, आप जितने अभी क्यूरियोसिटी से इसको सुन रहे हो, इसको अप्लाई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट is about the mindset and consistency. As I told you, that's not any magic diet और एक्सरसाइज प्रोग्राम जैसे अप्लाई करने से आप 1 महीने में 2 महीने में लूज़ करोगे और फिर से आपका वेट बाउंस बैक नहीं होगा। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट इसी वजह से होते हैं। बहुत सारे कोचेस भी लिटरली डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड्स, स्टूपिड काइंड ऑफ कोचेस जो इलिटरेट होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि बस एक्सपीरियंस इज़ द ओनली थिंग दैट आई नीड। आप अगर खुद को एजुकेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका बैकलैश फेस करना पड़ेगा, राइट। सो द थिंग इज, अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह करते हो तो उससे रिजल्ट शॉर्ट टर्म में आता है, बट आफ्टर अ टाइम आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से आ रहा है और ये मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मुझे कहीं तो ब्रेक देना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आपको फिर से नॉर्मल ईटिंग हैबिट पर आना पड़ेगा एंड फिर से आपका वेट गेन होना स्टार्ट होगा और उसी साइकिल में फंसोगे और इससे स्ट्रेस्ड हो जाओगे। बहुत सारे क्लाइंट्स यही रीज़न लेके मेरे पास आते हैं कि सर आई हैव गेन्ड माई वेट बैक एंड आई नीड टू लूज। मेरे कोच ने ये चीज़ें करवाई थी एंड आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन। ड्रास्टिक एक्सरसाइजेस, बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइजेस करवानी है, फूड पूरा बंद करवाना है, बस आपको स्पेसिफिक बॉइल्ड चीज़ें खानी है या फिर इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर लो, कीटो डाइट कर लो, दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टूपिड थिंग्स। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है अबाउट फैट लॉस कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मैं इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। जस्ट रिलैक्स, बिकॉज समटाइम्स आपकी बॉडी स्लो रिजल्ट्स दिखाती है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, आपकी बॉडी इंचेस लूज कर रही है, आपके वेइंग स्केल पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी आपको विजिबल चेंजेस दिख रहा है, आपके मसल्स स्टोन्ड हो रहा है, दैट्स अ साइन। अगर आपको बस वेइंग स्केल पर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना है। एंड बस आप वेइंग स्केल पर फोकस करोगे, आपका टारगेट यही रहेगा कि बस मुझे 15 किलो लूज करना है, आप उसको लूज भी कर लोगे, बट वॉट आफ्टर दैट। सो इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट। एक आपको फिट हैबिट लगानी है जिससे आप लाइफ टाइम इसको फॉलो कर सको एंड लाइफ टाइम आपको ये चीज़ें फिर से बाउंस बैक करके स्ट्रेस आउट ना करें, बिकॉज दिस इज़ द नॉर्मल लाइफ स्टाइल दैट यू नीड टू हैव। मुझे अभी इसको स्पेसिफिकली नहीं बताना चाहिए। आई फील दैट दिस इज़ द सैड थिंग अबाउट दिस जनरेशन कि लोगों को बताना पड़ रहा है कि आपको फैट लॉस करना है, आपको हेल्दी फूड खाना है। इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक डाइट। डाइट इज़ ओनली अबाउट ईटिंग हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाना भी आपको डाइट फील हो रहा है या फिर स्ट्रिक्ट फील हो रहा है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म नहीं खा सकता। ब्रो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट सेइंग दैट आपको हेल्दी फूड खाना है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको बॉइल्ड फूड, टेस्टलेस फूड खाना है। आई एम जस्ट सेइंग दैट अवॉइड दैट जंक फूड दैट यू आर ईटिंग एवरी डे आउटसाइड, जो आप गंदे नाली के पानी से वो पानी पूरियाँ खाते हो, या फिर आई डोंट नो अबाउट द हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं इन होटल्स और दिस फास्ट फूड सेंटर्स, but still you feel that this is the tasty food, then
what my mother cooks at my home. You need to change your habits अगर आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन तो इससे भी खराब आएगी. So the thing is, why I'm saying this, it's about building habits, because mainly I'm not working on any diet protocol or exercise protocol in my program. I work on a changing habits, because इसी से आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं. अगर आप अपनी हैबिट्स को ही चेंज करके इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हो, तभी आप इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो. दैट्स इट, सिंपल. नाउ लॉट ऑफ पीपल फील दैट कि फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इट्स टू डिफिकल्ट, बट आपको ये भी दिखेगा कि आपके अराउंड ऐसे भी लोग हैं जो उनके 40, 50s और 60s में भी बहुत फिट है सारे काम करके. बट नाउ डेज यंगस्टर्स फील्स दैट कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है. डूड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपने खुद से ही सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करा है. मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, मुझे कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, राइट. आपको फ़ोन पर स्क्रॉल करना बहुत ही अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद अ फ्रेंड्स एंड प्लेइंग सम स्पोर्ट्स. So this is your own fault. If you don't have any friend, just go out and join any sort of a sports centers. बैडमिंटन कोर्ट पे जाओ, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर जाओ, या फिर फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. मेक दैट इन्वायरमेंट. इफ़ नॉट, जस्ट गो टू द जिम. जिम ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पर वैसे इन्वायरमेंट मिलेगा. दैट्स इट, सिंपल. डाइट इज़ नथिंग डिफरेंट दैन जस्ट हेल्दी ईटिंग. सिंपल. जब आप सिंपली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. द होल थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू समराइज एवरीथिंग अगेन. फर्स्ट थिंग, आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द मिथ्स दैट यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनी मोर. सिंपल फॉर्मूला जो मैंने कैलोरीज का बताया था, कैसे कैलोरीज को आपको कट डाउन करना है, एंड वाई कैलोरीज आर गोइंग टू हेल्प यू टू लूज फैट. कोई भी मैजिक नहीं है यहाँ पर, ये सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. प्रैक्टिकल स्टेप्स मैंने बताए थे. प्रैक्टिकल स्टेप्स में आपको फूड पोर्शन को ट्रैक करना है, हाई प्रोटीन मील पर फोकस करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करना है, एंड डेली वॉक स्टार्ट करना है. डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा. फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट मिस्टेक्स. आपको डाइट एवरी वीक चेंज नहीं करना है, बस कार्डियो नहीं करना है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करनी है, एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं. एक्सपेक्टेशंस एज इन वॉट, आप एवरी वीक हाफ के जी भी लूज़ कर रहे हो, सो मंथली फॉर 2 kgs भी लूज़ कर रहे हो, इट्स अ गुड रिजल्ट. हर एक की बॉडी डिफरेंट रिजल्ट शो करती है. कुछ लोग 4 kg, 5 kgs और 10 kgs भी लूज़ करते हैं, और कुछ लोग 2 kg, 3 kg भी लूज़ करते हैं. बट फॉर अ मंथ अगर आपको रिजल्ट ही नहीं दिखा रहा तो आपके प्लान में खराबी है. आप जो भी फॉलो कर रहे हो वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हो. दैट्स वाई यू नीड टू ट्रैक एवरीथिंग. एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द माइंड सेट. Now you got whole information that क्या चीज़ें करनी है for a fat loss. Just drop in a comment that you got a good understanding from this or not, or if you want to cover up any points from this specifically in detail, just drop it in a comment. I'll cover those in my next video.